Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam. Canto 1, Chapter 6, text number 16. It's a very beautiful verse. Please repeat. Dhyayatascharanam bhojam. Not dhaya, dhyaya. Dhyayatascharanam bhojam. Bhavanirjita chetasa. Outkanthyastrukalaakshasya. हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः. ध्यायतः, thus meditating upon Charana Ambhojam, the lotus feet of the localized personality of Godhead. Bhavanirjita, mind transformed in transcendental love for the Lord. Chetasa, all mental activities, thinking, feeling and willing. Outkanthya, eagerness. Asrukala, tears roll down. Akshasya, of the eyes. Hridhi, within my heart. Asit, appeared. Me, my. Sharaihi, without delay. Harihi, the personality of Godhead. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Sri Krishna appeared on the lotus of my heart. Please repeat. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Sri Krishna appeared on the lotus of my heart.
The word bhava is significant here. This bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. The first initial stage is called Shraddha, or a liking for the Supreme Lord. And in order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage is to practice the prescribed rules and regulations of devotional service. This will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is standard faith in the transcendental matter, and the taste for it increases in greater proportion. This stage leads to attraction, and after this there is bhava, or the prior stage of unalloyed love for God. All the above different stages are but different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation, which leads to 8 different kinds of ecstasies. Tears from the eyes of a devotee is an automatic reaction, and because Sri Narada Muni in his previous birth attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material tinge. Correct. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudhapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Jaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Dalita Sri Visakhanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitramani Namaste Saraswate Deve Gauravani Ucharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vestarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Mukum Savati Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinatare. Very beautiful verse. Dhyayatas Charanam Bhojam. So what did we see yesterday? I think we are definitely seeing is that there is a lot of smoke here. You can put on the exhaust, please. Dhyayatas Charanam Bhojam. Yesterday what did we see? Yesterday we saw that Narada Muni, कल क्या देखा हमने? नारद मुनि ने क्या किया? लास्ट लाइफ में, हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के he began to meditate on the Lord. And आज हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन से क्या हुआ है. ध्यायतः यानी ध्यान करते हुए, चरणाम्भोजम चरण कमल का ध्यान करते समय, भाव निर्जित चेतसा, जिनकी चेतना भाव से निर्जित, यानी भाव मतलब कौन सा भाव? भक्ति भाव से जिनका चेतना पूरी तरह से टेक ओवर किया गया है. औत्कंठ्य अश्रुकला अक्षस्य. औत्कंठ्य मतलब, औत्कंठ्य का मतलब ईगरनेस, उत्कंठा, ईगर. हाँ, या गुड.
सो औत्कंठ्य मतलब ईगरनेस, अश्रुकला यानी टीयर्स, अक्षस्य आंखों में, हृदय आसीत में शनै ही हरि ही, मेरे हृदय में धीरे धीरे हरि कृष्ण आने लगे। शनै यानी धीरे धीरे, राइट। सो तो पॉइंट यह है कि भगवान अपने आप पे आसीत, आसीत मतलब हाँ, अपियर, भगवान हार्ट में अपियर करता, ऐसा नहीं बोला भगवान माइंड में अपियर करता, हार्ट में मतलब हाँ, हमारे डिजायर्स, हमारी फीलिंग्स के जो केंद्र है वो हार्ट। माइंड मतलब थॉट्स, जनरली माइंड में भी फीलिंग्स है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, बट जो कोर डिजायर सब कहाँ रहते हैं, हार्ट में रहते हैं। हाँ, तो भगवान हार्ट में आते हैं। हम्म, और भगवान कब आते हैं, जब हम बुलाते हैं। देखो दो प्रकार की चीज है, समटाइम्स वो व्यक्ति बुलाने पर भी नहीं आता, और कोई व्यक्ति बिना बुलाए आ जाता है। हाँ, दोनों में कौन सा अच्छा है? हाँ? दोनों ही अच्छे नहीं है। बिना बुलाए आने से क्या होगा, कि वैल्यू नहीं समझ पाए। बिन बुलाए आ गए, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, किसने बुलाया। और दैट पर्सन विल नॉट वैल्यू इट, he will not digest at the same time। बुलाने पर भी नहीं आ रहे तो अरे इनको कोई केयर ही नहीं है, दिस पर्सन डजंट केयर। हाँ, तो हम बुला रहे फिर भी अपना उनको कोई परवाह नहीं है कि he doesn't care at all, हम कहाँ मर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इज वेरी सेल्फिश, राइट। बुलाने पर भी नहीं आने से क्या होता है, व्यक्ति सेल्फिश माना जाता है, और बिना बुलाया गए तो शेमलेस, राइट। बिना बुलाए कौन आता है, मेहमान। बिना बुलाए आ गए मतलब उसको वैल्यू देते कोई। हाँ, तो फिर उनका अपमान होगा। बिना बुलाए आते तो उनको क्या होता है, अपमान होता है। और जब अपमान होता है तो करने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है, सुनने वाले के भी अच्छा नहीं। इफ यू गो टू अ प्लेस वेर यू आर नॉट वांटेड, थोड़ा आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इधर आ जाइए, आई एम नॉट एबल टू सी एवरीवन। सो बिना बुलाए आते हैं तो क्या होता है, उसको वैल्यू नहीं किया जाता है, उसको कदर नहीं किया जाता है, और कदर न करने से क्या है, अपराध होता है। अगर मान लो भगवान यहाँ आ गया अचानक दरवाजे से, और हम वी आर जस्ट बिजी इन आवर एक्टिविटी, देन व्हाट विल हैपन, अपराध है ना। Offense। So, भगवान भी एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मतलब बुलाने के बाद भी नहीं आता है, मतलब दैट पर्सन इज केयरलेस, दैट पर्सन इज, he has no compassion, hard hearted, selfish, correct? Yes or no? Very bro will tell me, सही है कि गलत? हाँ, ये कांच खोल दो इधर का, कांच, अच्छा कांच तो खुला है, इट्स कॉल्ड इल्यूजन। एनीवे, वेट। सो क्या बोल रहा था मैं, बिना मतलब बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं तो that person doesn't care। So what Krishna does is, नहीं आते जब तक हम नहीं बुलाते, लेकिन जब बुलाते हैं जरूर आते
जैसे यहाँ नारद मुनि बैठे हैं ध्यान कर रहे, एंड ही इज ध्यान कर रहे हैं, मतलब ही इज इनवाइटिंग द लॉर्ड, ही इज कमिंग इमीडिएटली। कृष्णा इज लाइक दैट। कृष्णा अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, एट द सेम टाइम वो दयालु भी। कभी कभी दयालु होने के लिए अपना डिग्निटी को हम छोड़ देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फिर लोग आपको छीप लेते हैं, और आप जो बोलना चाहते हो उसका वैल्यू नहीं देते। एट द सेम टाइम डिग्निटी बहुत ज्यादा मेंटेन करोगे अपना आकड़ दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं। अगर 2-3 बार बुलाने के बाद आता है कोई व्यक्ति, तो हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं उसके बारे में? कम से कम 3-4 बार बुलाना पड़ता है तब आता है। क्या बोलते हैं? अकड़ है कि क्या बोलते हैं? व्हाट इज द राइट वर्ड? हाँ, घमंड तो बहुत ज्यादा ही हो गया। समथिंग लाइक, मतलब वो थोड़ा सा अपना लेवल दिखाना चाह रहा है थोड़ा। है कि नहीं? तो इस तरह से कुछ लगता है, राइट? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। हाँ, लक्ष्मी देवी जब समुद्र मंथन से निकली थी, तो सब सब चाहते थे उनसे शादी करनी। एवरीवन वांटेड टू मैरी हर, एवरीवन वाज ईगर टू मैरी। इंद्र, रुद्र, और कौन है, ब्रह्मा, और अलग अलग देव, अलग अलग वर, इवन बलि महाराज, एवरीवन, सब, मतलब असुरों का राजा था या देवताओं का राजा था वहां पे। ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, सब एवरीवन वाज देयर एज सुटेबल के मैच। तो लक्ष्मी देवी सोच रहे मैं किनके गले में वरमाला पहनाऊं, और विष्णु तो कंबल ओढ़ के सो गए थे। He was not at all interested। हाँ? तो वो सोचती है किसी के अंदर वीरता है, लेकिन सेंसस कंट्रोल में नहीं है। इंद्र की बात किया जाए, और किसी में पराक्रम है लेकिन दुष्ट है, वो कौन है? बलि। और कोई बहुत महान है, लेकिन आ, उनका भी कभी कभी सेंसस कंट्रोल में नहीं। ब्रह्मा जी। और एक भी व्यक्ति बहुत महान है, लेकिन उनके आसपास के माहौल मंगलमय नहीं। शिव जी की बात कर, पर ये है विष्णु, लेकिन उनको मेरे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या करें? लेकिन इनको मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, आसक्ति नहीं है, लेकिन मुझे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। विष्णु की ये क्वालिटी, इज नॉट अटैच टू एनीवन। गोपियां भी, राधा रानी भी थोड़ा सा अगर लगता है देखो कृष्ण इज एंजॉयिंग, मगर कृष्ण लेफ्ट इमीडिएटली। कृष्ण किसी से आसक्त नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो प्रेम से बुलाते हैं तो आते हैं। तो कृष्ण जब रासलीला करते हैं, दैट इज द थिंग, कृष्ण रासलीला जब करते हैं, ऐसा नहीं कृष्ण इनकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो गए, एंजॉय करना चाहते, ऐसा नहीं। ही डजंट केयर, he couldn't care less, he just left रासलीला। He doesn't need anyone, he's not attached to anyone actually, but he is attached to love, pure love, selfless love। इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी, जैसा भक्ति के एक लक्षण क्या है, कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो पॉइंट इज दैट कृष्णा इज नॉट attached to anyone, at the same time he does not neglect anyone। can we do that? extremely difficult। हम किसी को तब ध्यान देते हैं जब उससे अटैच्ड होते हैं, और अटैच नहीं हो रहे थे तो जाओ भाड़ में, हम क्या फर्क पड़ेगा। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, राइट? हमको किसी से कुछ मतलब है तो वी गिव अटेंशन, और मतलब नहीं तो तू जा, मुझे क्या फर्क। करेक्ट?
व्हाट इज कृष्णा? कृष्णा इज टोटली डिफरेंट। कृष्णा किसी से भी अटैच नहीं है, लेकिन किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते। कोई भी उनके पास आता है तो इमीडिएटली इज देयर। दैट इज व्हाई ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। दैट शुड बी आल्सो द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी भी ऐसे डिवोटी कंपैशनेट होता है, हम्बल होता है, एट द सेम टाइम चीप नहीं होता है ना। अगर आप अपनी अपनी ओन डिग्निटी नहीं मेंटेन करोगे तो लोग आपको चीप लेंगे। इसलिए अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति। नाइन्थ ऑफेंस क्या है? व्हाट इज द नाइन्थ ऑफेंस टू द होली नेम? To instruct a faithless person, why is it offense? Because जो इसको वैल्यू नहीं देता उसको देंगे तो he will offend, उसको चीप लेगा। And when he does that, then what will happen? He is committing offense. इसलिए कृष्ण सभी हृदय, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं कब हम उनके तरफ मुड़ेंगे। बट जब तक हम इनिशिएट नहीं करते हैं तब तक भगवान भी इनिशिएट नहीं करते। हाँ, डिवोटीज लेकिन इनिशिएट करते हैं। डिवोटीज आर वेरी मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड। इसलिए डिवोटीज चाहते हैं भैया कृष्ण की भक्ति करो, भगवान नहीं बोलते, भगवान जस्ट वेट कर रहे हैं। बट जिस क्षण हम उनके तरफ मुड़ेंगे, कृष्णा इज देयर, इज ऑलवेज देयर। So therefore, devotees are more merciful than the Lord. Now that does not mean that devotee should also not maintain his dignity. Devotee को भी अपने dignity maintain करना जरूरी है। हाँ, जनरली devotees को लोग respect करते हैं, इसलिए लोग उनको बताते हैं। लेकिन if there is someone who does not respect the devotee, then the devotee should also stay away from that person. हाँ, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। जो थोड़े से हेटफुल है, ये जो डिसरिस्पेक्टफुल है, उनसे क्या करना चाहिए? उपेक्षा, दूर रहना चाहिए। So therefore, but the moment that person shows eagerness, even someone is a big offender also. एक बार हमारे गुरु महाराज भक्ति चौर महाराज, एक डिवोटी था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता फॉर सम रीजन, और वो टेंपल प्रेसिडेंट थे। और उनके टेंपल में जब भी महाराज जाना चाह रहे थे, महाराज बोलते थे महाराज यहाँ कोई है नहीं आपको रिसीव करने का, एवरीवन इज बिजी, डोंट से दैट। महाराज अंडरस्टूड and he never went. After some years, the devotee he himself was in big problem. हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने खुद भक्तिचार महाराज को इनवाइट किया, and महाराज came and he hugged him for long time. तो इसका मतलब क्या है? मैं आपका पुराने जो भी बिहेवियर है मैं उसको मन में नहीं रख रहा। That is the message. So point is, devotee कोई खुन्नस नहीं रखता, अरे उसने इतने साल से मुझे ऐसा किया, इतना आसानी से कैसे माफ कर दूं। One word sorry is enough to forgive any number of offenses. एक वर्ड सॉरी काफी है सारे अपराध, बट ऑफ कोर्स वन हैज टू मीन इट, नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी निभा के हाँ सॉरी, ऐसा नहीं, has to feel sorry really deeply, sincerely. Then one word से भी भगवान क्षमा कर सकते हैं, डिवोटीज भी क्षमा कर सकते हैं। But one genuinely felt sorry, and devotee also नहीं सोचता इतना कुछ कर दिया बस सॉरी से खत्म हो जाए। एक शब्द कह के भाई आप इतने सालों से, इतने समय से आपने हम इतना कुछ किया, और एक सॉरी बोल दोगे छोड़ देंगे हम? कोई छोटा मोटा काम है क्या आपने जो किया? नो, devotee immediately willing to forgive. Even otherwise also he forgives. Otherwise also forgive करता है, लेकिन उनसे एसोसिएट नहीं करता है, दूर रहता है, क्योंकि एसोसिएट करेंगे तो और ज्यादा ऑफेंड करेगा, इसलिए उनसे दूर रहता है डिवोटी। लेकिन
एक बार वो genuinely sorry बोलता है and repent करता है, then the devotee can also associate with him and extend whatever he can. Correct? So point is that भगवान भी क्या है, भगवान भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके तरफ मुड़े, भगवान भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको बुलाएं, not casually, not casually. अगर कोई कैजुअली बुलाता है तो कोई नहीं आता है, भगवान भी नहीं आता. You have to call sincerely. Call sincerely. He is there to come. He is willing to come. Just call sincerely. With heartfelt emotion, heartfelt eager. हम चैंटिंग करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन we are casual about it. Therefore Krishna says, okay. वो भी casually ही रहते हैं. But before starting to chant, you pray. Take a minute or two. 1-2 मिनट टाइम लो. Just to offer praise. Don't just jump into chanting like that. अब हो गया वांछा कल ठाक. Not like that. As soon as that Vaishnava pranam is over, you just sit, offer your favorite prayers, and talk to the holy name. Tell him that, see, मेरा कोई eagerness नहीं, मेरा कोई desire नहीं, please, please stay in my mind, stay in my heart. Please come. Just like when Narad Muni invited, immediately he came. But because Narad Muni's invitation was so sincere, because he had no other attachments, उनके एक ही attachment थी, उनकी mother, और वो भी चली गई. अब किनसे attachment? अब क्या है attachment? घर भी छोड़ दिया, travel करते करते बस. And he had only the Supreme Lord. And by the association of that Mahabhagavatas, उनके अंदर वो purity, वो love develop हुआ है. So with that he called out. Krishna was immediately present. Yes, but at the same time Krishna is slow. भगवान बोलते हैं ना, Krishna is what? Slow. Krishna slow है. But that's not a slow kind of laziness type of slow. But he is a graceful kind of slow. जो लेजी है वो भी स्लोली काम करता है, आलसी, इसलिए धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे काम करता है. भगवान ऐसे नहीं है. भगवान धीरे धीरे आते हैं. To the extent we are eager, that's what it means. He lets it mature. He lets our devotion mature. Devotion को mature होने देते, तब तक थोड़ा इंतजार करता. लेकिन as soon as a person is 100% eager, he'll come immediately. और बचपन में तेलुगु में भागवतम है, which was written hundreds of years ago, translation from Sanskrit, पोतना. एंड उसमें बहुत सुंदर श्लोक है, तेलुगु में श्लोक है, वो भी सैकड़ों साल पहले लिखे हुए हैं. भागवतम था, वो मैं पढ़ता था. बहुत सुंदर श्लोक है. You will not understand if I recite it. श्लोक actually means that जब गजेंद्र ने भगवान को बुलाया तो भगवान क्या किए? He did not tell Lakshmi. वो इतना जल्दी में थे क्योंकि काफी समय से प्रार्थना करते थे, लेकिन वो एकदम से जब 100% सरेंडर आया ना उनके अंदर, तो बोलते श्री किंग जब पढ़ो. इवन he didn't tell Lakshmi Devi also कि मैं जाके आ रहा हूँ. He didn't even have the time to take his chakra and शंख चक्र को उठाने का टाइम नहीं था. He didn't consult anyone. He didn't even call Garuda. जनरली गरुड़ के ऊपर आते हैं ना, गरुड़ को भी बुलाने का टाइम नहीं था. वो पहले भाग रहे थे, पीछे पीछे गरुड़ आ रहे. एंड और तो और एक और क्या है, वो बैठे थे अपने शैया के ऊपर एंड लक्ष्मी देवी का साड़ी का पल्लू उनके हाथ में, उसको भी छोड़ने का टाइम नहीं. तो वो भी साथ में भाग के आना पड़ा. हाँ हाँ, श्री कुचो परिचय लांछल में ना, लक्ष्मी देवी
जो चेस्ट के ऊपर से जो है ना वो पल्लू, he couldn't even leave that. He didn't even have the time to leave. He was so in a hurry. मतलब Hari was in a hurry because he was so eager to protect Gajendra. जब प्राणावनोत्साही, तो कहने का मतलब यह है कि कृष्णा इज ईगर, ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट अ मोमेंट, वो एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करता। बट फिर भी यहाँ पर क्या बताया, ग्रेजुअली कम्स, व्हाई? बिकॉज व्हेन ही कम्स ग्रेजुअली, बिकॉज वी आर आल्सो ग्रेजुअल इन आवर सरेंडर, therefore he comes also very gradually, because generally things take time to mature. पौधा क्यों फटाक से बढ़ता नहीं है? मैच्योर होने में टाइम लगता है, दैट इज हाउ नेचर वर्क्स। Because of our passion, we want everything fast. खाना पकने में भी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसका हर एक स्टेज का there is something to realize at every point. There is something to realize. यहाँ से आप मान लो वृंदावन जाओगे, आजकल तो ट्रेन या फ्लाइट में चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से गुजरे, राइट? We travel so fast, but अगर धीरे धीरे चलोगे तो हर पौधा दिखेगा। You go by walk, then what will happen? हर पौधा, हर पत्थर, हर नदी, हर, you can see, you can relish every step on the way. But हम इतना फास्ट चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ से गुजरे, क्या क्या दिखता ही नहीं। So point is, it takes slowly, because एक एक रियलाइजेशन, एक एक चीज थोड़ा 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 करके रियलाइज करते 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 वहां तक पहुंचने में, किसी को एकदम लॉटरी लग गया 10 करोड़ रुपए का, वो अच्छा है कि व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करके कमा के और बढ़ा के वहां तक पहुंचने में मजा। तो दैट गिव्स द रियलाइजेशन, दैट गिव्स यू कि उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर पाओगे। तो सिमिलरली कृष्णा इज आल्सो लाइक दैट। कृष्णा will appreciate the value of Krishna when we gradually realize. That's why Krishna is slow. But when you are surrendered, then he's fast also. Right? So therefore, जब कोई व्यक्ति sincerely बुलाता है, heartfelt manner में, Krishna is immediately coming, just like in the case of Narada Muni. So therefore, we should invite Krishna with eagerness. And Krishna's every act is madhur, right? Karanam madhuram, taranam madhuram, ramanam madhuram, asitam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram, venur madhura, renur madhuro, panir madhura, padav madhuram. Everything is sweet, everything is graceful, everything is wonderful, the way Krishna does. Krishna does everything perfectly, right? That's why he is Krishna. So devotee in his behavior is also very, very graceful. Like that. Devotees are also very graceful. Vajradapi kathora. Sometimes a devotee can be harder than thunderbolt. Sometimes he can be softer than rose. Kusumadapi komala. He can be softer than a rose, but harder than a thunderbolt. Correct? When a devotee का behavior कैसा रहता है? Depending on the behavior of the other person, right? If a person is asking a question, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है प्रभुपाद जी से, कोई भी प्रश्न लेकर आते तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? जवाब देते। If it is a humble inquiry, but if it's a challenge, अगर कोई challenge करते थे तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी would challenge back. किसी ने प्रभुपाद जी को बोला मैं भगवद गीता पढ़ा हूं, तो क्या पढ़े भगवद गीता में? पाप नहीं करना और धर्म को फॉलो करना। प्रभुपाद जी बोले नो, गीता भगवान बोलते धर्म को छोड़ो और पाप से मैं मुक्त कर दूंगा।
Saradharman Bharati Jawab. Like, someone is coming in a challenging way. आपको अब कैसे पता है आप भोग लगा रहे हो तो कृष्ण खा रहे हैं कि नहीं? Should I believe Krishna or should I believe a rascal like you? Krishna says that I am eating Snami. So point is, someone challenges Prabhupada would also. तो कहने का मतलब ये है कि if someone is inquiring, one can reply. Right? And if someone is, for example, devotee humble रहता है, कोई feedback आता है तो accept करता है. Someone is giving feedback, you accept it. But someone is making allegation, what do you do? If someone is just making allegation that आप ऐसे हो, what do you do? You don't reply. You don't care to reply. Jayadvaita Maharaj was the in charge of BBT. Prabhupada ji ने उनको सेवा दिया कि मेरे बुक्स को एडिट करोगे. Prabhupada ji जो बुक्स लिखते थे, it was like what? Grammatically perfect नहीं था. So Prabhupada ji क्या बुक्स कैसे लिखते थे? He would dictate. सब डिक्टाफोन में रिकॉर्ड होता था, फिर बाद में it was transcribed. So Jayadvaita Maharaj had the service of editing Prabhupada's books, and that service was given by whom? Prabhupada himself, right? Jayadvaita Maharaj edited all of Prabhupada's books. But some devotees, they accused Jayadvaita Maharaj कि आपने Prabhupada जी के books को change कर दिया. Jayadvaita Maharaj ने क्या किया? He never replied. Never replied. It's an allegation. Why should I defend myself? मुझे क्यों अपने आप को defend करना? I know what I am. But when devotees requested, please clarify this, then he gave a clarification. A very long clarification with all examples and everything. कि I have not changed anything. So point is, अगर कोई पूछता है, it's a humble inquiry, you can answer. And if it's a positive feedback, you can take it. But if it's an accusation, allegation, then what do? You don't have to reply. Or if you're too humble, you can say, okay, I'm a fallen soul. Please don't waste your time with a fallen soul like me. Better find some better engagement for yourself. So therefore, a devotee's actions should be very graceful, just like the Supreme Lord. That is one lesson we learn. Another lesson we learn is that Krishna is waiting. As they say, Prabhupada क्या बोलते थे? Krishna is more eager. Krishna is more eager for us to come back to him than we are eager for us to go back to him. हम भगवान के पास जाने के लिए कितना eager हैं, उससे ज्यादा भगवान उत्सुक है हमें वापस लेने के. Right? So therefore, Krishna is waiting eagerly, but at the same time, Krishna is detached. Krishna also respects the freedom that he himself has given to all the living entities. भगवान ने खुद दिया सबको freedom, और उस freedom को भगवान खुद respect करते हैं, इसलिए वो enforce नहीं करते. But of course, along with freedom comes responsibility. अब freedom के साथ responsibility आता है. Freedom के साथ आप जो choice लेते हो, उसके consequences की responsibility आपको लेना पड़ेगा. Consequences आएंगे, you cannot blame Krishna. So therefore, but at the same time, consequences आने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ने सहाय होकर कृष्ण को बुलाता है, Krishna is always eager to receive. Immediately he is there. So that can only be done by Krishna. So Krishna is very eager. Krishna इतना प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं हम उनके पास आए. पर प्रॉब्लम एक ही है कि हम नहीं चाहते. That's the only problem. And if we are eager, if we really want, so in the process of bhakti, sometimes we tend to miss the essence.
हम भक्ति करते करते असली चीज भूल जाते हैं। भक्ति करते करते, सेवा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली कृष्णा ओनली वांट्स दैट सिंसियर डिजायर टू अटेन हिम। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितनी सेवा कर रहे हो क्वांटिटी वाइज, आप कितना डोनेशन दिए हो, या फिर कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हो, या कितने लोगों को भक्ति में लाए हो, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा। कृष्णा, व्हाट कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज, सब मिलाकर भी इतना तुच्छ है। Why will Krishna care for any of these things? So therefore, Krishna only cares for our desire. So हम कई बार बहुत सारे सेवा करते हैं, वो बहुत सारी सेवा करने में हम ये सोचने लग जाते हैं कि देखो मैं सेवा किया हूँ, या हम इतने सारे सेवा में बिजी होकर अल्टीमेटली वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वी बिकम, अरे बहुत ज्यादा सेवा हो गई यार, बहुत ये हो गया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फिर some petty thing like that, उसमें फंस के अल्टीमेटली जो कृष्ण प्रेम, which is the ultimate goal of life, we forget that. We forget that we came here to attain Krishna, and we become caught up in many small things. So therefore, every day we say, everyone who claims to be a Vaishnava must carefully guard against these 10 offenses in order to quickly achieve the desired success, which is, but that is it desired? Desired success what hai? That is the desired success. The desired success is not going back to Godhead also, or to speak of other things. A devotee is not, this is very important to understand. A devotee is not attached to anything. A devotee is not even attached to being good. A devotee is not even attached to being selfless. Are we vegetarian or non-vegetarian? Are we vegetarian or non-vegetarian devotees? Neither. We are Krishnatarian. We are not vegetarian. We are not non-vegetarian. We are Krishnatarian. Whatever Krishna eats, we eat. Similarly, is a devotee selfish or selfless? We are neither selfish nor selfless. We'll do what Krishna wants. If Krishna is more pleased by being selfish, we will become selfish. And if Krishna is more pleased by becoming selfless, we cannot be selfless at the cost of Krishna. So in order to please Krishna, sometimes you have to be selfish also. So you are attached to any particular quality. If you separate from Krishna, that quality actually becomes a material quality. It can take you away from Krishna. Even gratitude. Even caring nature. Caring, loving nature also can be Maya sometimes. If you overly identify yourself as the caregiver, without understanding that we are not the caregiver. It's Krishna's job. Sometimes care देना भी माया हो जाती है. Sometimes क्या बोलते हैं उसको? Grateful होना भी माया हो जाता है. अरे उसने मुझे बहुत हेल्प किया. उसने मुझे बहुत हेल्प किया. अब पैसे मांगा दारू बॉटल खरीदने के लिए, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? Is that a good gratitude? अगर हम really grateful है, this is going to destroy you, don't do it. That is real gratitude. Not to give what he wants, but to give what he needs in relation to Krishna. So everywhere we have to bring Krishna in the picture. Then we can see things as it is. कृष्ण को बीच में लाना जरूरी है. कृष्ण को जब बीच में लाते हैं, then it is clear.
जब कृष्ण बीच में रहते हैं वो सेल्फिशनेस भी अच्छा है, जब कृष्ण बीच में रहता है तो धोखा देना भी अच्छा है. एनी एग्जांपल्स? समवन हु चीटेड फॉर कृष्णा, कैन यू गिव एनी एग्जांपल? हाँ, युधिष्ठिर महाराज, वाह, अश्वत्थामा हाथ कुंज रहा गया. और एनीवन हु चीटेड फॉर कृष्णा? नारद मुनि रावण को चीट, सॉरी, नारद मुनि प्रभु जी रावण को चीट करके वो पाप रिप्रेजेंट. नारद मुनि रावण को, हाँ नारद मुनि तो हमेशा ही चीट करते पर कृष्ण ऑफ कोर्स. हाँ, हाँ, एक आलवार थे साउथ इंडियन आचार्य. हाँ, वो क्या किए, साउथ इंडिया के जो आचार्य हैं आलवार, उन्होंने क्या किया, श्रीरंगम का जो टेम्पल है ना वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे. नोबडी वाज गिविंग लक्ष्मी. सो देयर वाज अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, लुटेरे का गैंग था. उनसे मिला, बोलो एक काम करो, ये सारे जो अमीर लोग हैं ना इन लोगों को लूटते हैं, लूट के पैसे हम बांट लेते. सबको आइडिया अच्छा लगा एंड द गैंग ऑफ डेकॉइट्स लूटेड एवरीवन. एंड अब पैसे बांटने की बारी आई तो बोले यहाँ कोई भी देख लेगा, नदी के उस पार जाते हैं. सारे पैसे नाव में रखे और वो लोग भी बैठे, ये भी बैठे. बट ही हैड द पावर ऑफ वॉकिंग ऑन द वाटर. तो उन्होंने क्या किया, नाव को डुबा दिया और सब डूब गए, वो अकेले पैदल चल के आ गए. एंड फिर वो धन को यूटिलाइज टू build that big Srirangam temple. It's one of the 12 Alvars before Ramanujacharya. So of course we cannot imitate that. Don't do that. कल ऐसा नहीं कि भैया आज क्लास में बताया तो कल सब लोग अब ट्रेनिंग हाउ टू लूट अ बैंक या कुछ ऐसा. So not like that, but my point is, when Krishna is in the center, any quality, even so-called bad quality, may become good quality. And without Krishna in the center, even so-called good quality becomes a bad quality, right? So therefore, we should bring Krishna in the center, and we should call out for Krishna. Call for Krishna and know that Krishna is waiting. Krishna already wait कर रहा है. कृष्ण को wait नहीं कराना, because we love Krishna, we don't want Krishna to wait, right? कृष्ण को wait नहीं कराना एक पल भी, नहीं तो कृष्ण आपको वेट कराएंगे. कृष्ण वेट कराएंगे तो हमको पता नहीं कितने करोड़ों जन्म वेट करना पड़ेगा. बेटर दैट we don't make Krishna wait. If you make Krishna wait, then maybe we have to wait. हम सोचेंगे भक्ति करेंगे ना, बाद में करेंगे, बस कुछ नहीं, जस्ट मेरा पढ़ाई मतलब ये जो हो जाए, let me get the seat in this thing, or let me get this job, or let me get this something. उसके बाद में मैं ऐसी भक्ति करूंगा ना, ऐसी भक्ति करूंगा सब लोग दंग रह जाएंगे. I'll become such a great devotee. बस just 1-2 years. Who knows? We may die before that. Is that time? Of course, that does not mean that we should neglect our duties. So, but while in any situation, कितना भी important duty हो, we cannot put Krishna on the side. कोई भी चीज इतना important नहीं कृष्ण से ज्यादा है क्या? Anything is more important than Krishna? Nothing. Whatever it may be, put Krishna in the forefront, and then you do your other work also for Krishna. And that is a sign of sincerity. So therefore Krishna is waiting.
Let's not make him wait. We should pray to Krishna. Krishna, मैंने ऑलरेडी बहुत वेट करा दिया आपको, बहुत समय, अब और वेट नहीं कर रहा हूँ. But I can only do it with your help. I'm too weak. I'm too helpless. Please help me to serve you. And you pray like that, Krishna will appear. Thank you very much, Hare Krishna. Any question? Any questions, comments? What I'll do is I'll first take the questions offline today, and then I'll take online questions. पहले offline. Anyone, because आप लोगों को कॉलेज जाना है. क्वेश्चन नहीं? अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन ले लो. यस, कौन हैंड रेज कर? दिव्या खरे, बोलिए क्वेश्चन क्या? ओके, अनम्यूट करना है. लेट मी अनम्यूट. यस दिव्या माता जी, बताइए. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हाँ, आपने कल स्टोरी बताई थी श्री रामा जी की, तो उसमें वो तो धरती में वापस आ गए थे, तो क्या हम गोलोक वृंदावन जाने के बाद धरती में वापस आ सकते? क्योंकि भगवान ने तो बोला तो हम नहीं आ सकते. तो वो स्टोरी में तो श्री रामा को श्राप मिल गया था ना, तो यही पूछना था कि उसको फिर कैसे समझे. कभी कभी भगवान भेजते हैं किसी कारणवश. भगवान भेज सकते हैं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई आते हैं, वो विशेष कारण के लिए आते हैं. हमारे जैसे करोड़ों जन्म यहाँ भटकते नहीं. वो तो आते हैं, उनका काम करके वापस भी चले जाते हैं. ये भगवान की अरेंजमेंट. ठीक है, और कोई प्रश्न? कभी कभी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को माया में डालते हैं. जैसे अर्जुन को भी माया में डाला, तभी तो भगवद गीता बता पाया. तो वो कृष्ण जब माया में डालते हैं वो एक अलग चीज, पर हम जब माया में गिरते हैं वो एक अलग चीज. वो बहुत डिफरेंस. यस, यू हैव क्वेश्चन. समझा नहीं. इमरजेंसी में भगवान अपनी को ड्यूटी करते हैं. होता ये है कि आप यदि को टाइम देते हैं, अपना ड्यूटी टाइम देते हैं, वो अगर नॉर्म बन जाता है कि वो आपके पास कितना पहुंच सकते हैं. उस केस में क्या बात मतलब कंसल्ट करें से बात नहीं कीजिए, को पहले डील करने के बाद नॉर्म मतलब नॉर्म बन जाता है. कैसे मतलब नॉर्म बन जाएगा तो फिर वो आप अपना ड्यूटी करते रहेंगे, फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा. हम तो बस ब्रेक करें या फिर उनको बस बताइए कि ये सही है, आप बाद में तो हम बन गया तो यू शुड स्टिक टू द नॉर्म. wrong. If it is a wrong norm, then you change the norm. And if it is the right norm, then you follow the norm. And if it is an emergency, you break both. You have to, unless you clearly explain the situation, it's very difficult to answer it. It's very abstract. गलत नॉर्म है तो नॉर्म को चेंज करो, सही नॉर्म है तो उसको फॉलो करो. इमरजेंसी है
ब्रेक करना पड़ सकता है, वहाँ इंटेलिजेंस यूज करो। That's it. Yeah. डिग्निटी वाला See, the point is dignity maintain करना मतलब ये नहीं कोई pride घमंड. You should maintain your respectability by not allowing others to take you cheaply. कोई आपको cheaply न ले, ये है dignity. मतलब ये नहीं कि हाँ देखो समझो मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं है. Not in a proud way. Not that you want people to respect you like that, but we don't want people to also misuse or abuse or which is not good for them basically. ऐसा नहीं कि उससे हमको दिक्कत है, बट उनके लिए भी अच्छा नहीं. अगर हम भगवान को ऑफेंड करेंगे तो नुकसान किसको है? अपने को है. इसलिए भगवान अलाउ नहीं करते हैं, भगवान ऐसा एक्ट नहीं करते हैं ताकि हम उनको ऑफेंड करें. इसलिए जो ऑफेंड करता है उनको हम उपदेश भी नहीं देते, क्योंकि अगर ऑफेंड करेगा तो उनको नुकसान है. So therefore we don't tell that. Not in a proud way. Dignity maintain करना मतलब not in the sense कि oh we want everyone to think highly of us or to praise us or to satisfy our ego, not like that. But we don't want people to abuse us, so that will become their bad habit. That is not good for them. And at the same time we also cannot help someone unless they really want help. जब तक कोई चाहता नहीं help, हम कैसे help करें? Someone has to give some indication that they need help, and also according to your capacity. उसके बाद भी हमारे capacity के अनुसार हम help कर पाएं, और जिस तरीके से help किया जाता है उस तरीके से help कर पाएं, ना कि आप जैसे चाहते हो. I hope that answers your question. Anything else? Yes, Shashi Mukhi Mataji. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much Prabhuji for the wonderful lecture. Prabhuji, as you said कि जितना हम वेट कर रहे हैं कृष्णा के लिए, उससे ज्यादा कृष्णा is waiting for us. But Prabhuji, why then कई बार जो devotees progress कर रहे हैं या काफी sincerely they have made efforts, then why कई बार मतलब कृष्णा puts test in between? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो सिंसियरली प्रोग्रेस भी कर रहे हो, काफी टाइम से अच्छे से कर रहे हो, बट वो टेस्ट की वजह से दे माइट फेल, एंड देन फिर उनका भक्ति वापस पूरा मतलब काफी डिग्रेड हो जाता है. तो आई हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस क्वालिटी ऑफ कृष्णा. टेस्ट उन्हीं को डिस्क्वालीफाई करती है जो सिंसियर नहीं है, राइट? अगर सोना है तो आग में डालने से क्या होगा? और प्योर बने और अच्छा बने. अगर वो रोल्ड गोल्ड है, रियल गोल्ड नहीं है, कुछ डुप्लीकेट गोल्ड है, तो क्या होगा? वो जल जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा. सो टेस्ट क्या करता है? जेन्युइन को और नॉन जेन्युइन को अलग करता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टेस्ट क्या करता है? जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को सेपरेट करता है. टेस्ट के बाद क्या होता है? जो जेन्युइन है वो रहेगा और जो नॉन जेन्युइन है वो अपने आप जाएगा. So if a test is given by Krishna ultimately, then the test will either make a person more progress or regress. So therefore test जो है is good. टेस्ट है तभी तो हम प्रिपेयर करते हैं. टेस्ट नहीं होता तो कोई पढ़ेगा क्या? कृष्णा टेस्ट so that we be prepared. And at that time you need to take shelter of Krishna. Krishna, ये टेस्ट बहुत मुश्किल है भैया, आप हेल्प करो थोड़ा. Not in the literal sense. कल एग्जाम हॉल में वो टेस्ट की बात नहीं कर, हम लाइफ की टेस्ट की बात कर. So
We have to cry to Krishna for help. He's there to help. But if we don't cry to Krishna, then what happens? Then we'll fail. So bhakti is a very scientific process. बहुत scientific process. बहुत scientific, बहुत practical. अगर फेल हो रहा है मतलब क्या? प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया, राइट? अगर गाड़ी चालू नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या? समथिंग रॉन्ग. इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस. इट्स अ मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर एवरीथिंग. ऐसा. If that person is eager to rectify and take shelter of Krishna and devotees and try to pass the test, then Krishna and devotees are there to help. So that has to be there. A genuine desire. Nothing is more important than Krishna, not even our ego. Sometimes we put our ego is more important than Krishna. Sometimes we put our other material desires more important than Krishna. Krishna says, you want that or you want me? Decide. आपको वो चाहिए कि मैं चाहिए? If you say, no, my ego is more important. Krishna, you go. No, this is more important. Then what happens? You say, okay. That's how the genuine and non-genuine are separated. If one is genuine, then he can say, oh, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण को नहीं छोड़ सकता. And you seek shelter. That shelter is there. कृष्ण को devotees association. कृष्ण को छोड़ने का मतलब कई प्रकार से होता है. कृष्ण को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एकदम जो सारे सब कृष्ण एथिस्ट हो जाए और चार नियम तोड़ने लग जाए तो ही कृष्ण को छोड़ा. कृष्ण को छोड़ना कई प्रकार से होता है. इंटेंसिटी कम हो गया, वो भी कृष्ण को एक प्रकार से छोड़ना ही हुआ. जैसे बहुत इंटेंसली वक्त करते हैं, इंटेंसली नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा कैजुअली कर रहे हैं, तो बोल सकते नहीं मैं कृष्ण को नहीं छोड़ा हूं, लेकिन एक प्रकार से छोड़े, राइट? मतलब कृष्ण को कहीं आपने बैक सीट दिया. कृष्ण आप इंपॉर्टेंट हो लेकिन बैक सीट में बैठो. चाहिए मुझे कृष्ण, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि उसके लिए मैं इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करूं, इतनी बड़ी सीरियसली उसको फॉलो करूं. दैट इज ऑल्सो वे ऑफ सेइंग कृष्ण. दैट ऐसा नहीं कोई बोल सकते नहीं हम कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट? What is the level of sacrifice you are willing to make for that? What is the level of humility, humble position you are able to take? How much you are willing to give up your ego? How much you are willing to take a humble position? How much you are willing to make some sacrifices? Genuinely, these are the tests. I hope that answers your question. Yes, 100%. Yes. Last question. टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है इसलिए टेस्ट लेते हैं. टेस्ट क्या है? सेपरेट करता है. जेन्युइन है उसको दिखाता है, जो रियल है उसको बाहर निकालता है. जो बनावट है, जो दिखावट है, वो उसको अलग कर देता है. दिखावट टेस्ट का काम ये है. जो असली चीज है वो बाहर निकालता है. टेस्ट मतलब ये है. ऐसे नहीं कृष्ण को पता नहीं, कृष्ण को पता है इसलिए टेस्ट कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए कि असलियत क्या है. ताकि हमको भी प्रूव हो जाए, सबको भी प्रूव हो जाए भैया असलियत क्या है. कृष्ण को तो पता है. राम जी को पता नहीं है क्या सीता इज प्योर? क्यों अग्नि परीक्षा कर रहे हैं? तो प्रूव. एंड ऑफ कोर्स शी पास्ड इट.
ऑलराइट, थैंक यू। तो मैं हैंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्रीमद् भागवतम की। जय प्रभुपाद।